The idea to organize Conference of Panchayat was inspired by the Conference of Parties, which I mean, the people who would be listening to later on who listen to this knowledge sharing session would know that it's an annual convening of the signatory countries of UNFCCC, which with the aim of strengthening the global response to threat of climate change. We somewhere felt that the Conference of Parties as an annual convening is a great idea, but somewhere it misses out on integrating the voices of those who are already facing the brunt of climate change or are likely to in the near future. What one also needs to keep in mind that these communities are some of the most marginalized. And the climate discourse is extremely top heavy and jargon based. So there we felt that there is a need to make it a part of everyday conversation. So with this in mind, we conceptualized the Conference of Panchayats, where we thought of bringing together the local communities and the PRI members together on a common platform where they could uh, come to share their knowledge and learn about certain best practices and also learn from each other and design and implement effective sorry about that climate effective climate adaptation and mitigation strategies based on whatever learnings were drawn from these convenings at the panchayat level. Sorry, not at the panchayat level, but we were organizing these at a divisional level, but the participants were drawn from the panchayat. Through the COP, the idea was also to increase awareness and understanding of climate change issues among PRI members and the local communities. Along with somewhere learning about various climate adaptation and mitigation strategies, the idea was also to increase awareness and understanding of climate change issues. As we went ahead, the idea of COP was ever evolving. So we were the first edition was more to learn from the communities themselves. And then once the learnings that we drew upon from the first edition, during the second edition, we realized that a platform could also be utilized to discuss various government funds that are available for implementing local climate actions. And also engage local communities in climate action planning and implementation. That was largely the idea, and also it somewhere gave a platform to not only the PRI members, the communities, but also brought together government agencies, CSO partners, and also local journalists who are working within the climate space on a common platform. That was largely the idea. Yeah. मुन्ना एंड गुलाब जी, आप लोग अगर अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाहें इसमें। नहीं है इसमें तो बहुत अच्छा हमारे गुनाज जी बोले हैं कि ये सीओपी का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो जो कॉप माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉप हो रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो उसमें जो चीजें हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पर्यावरण असंतुलन, उसके सवाल को लेकर के वहां बातचीत हो रही है। लेकिन वो बातचीत होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, लेकिन वो देश अगर वहां हमारा देश प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या-क्या बातें होती है, क्या-क्या नीतियां बनती है, क्या-क्या उस पर फॉलो होना है। तो एक तो हम लोग ये आधार बनाए कि जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है, तो उनकी बातों हम अंतिम व्यक्ति माने गाँव तक कैसे पहुँचाएँगे और उसका माध्यम क्या हो? तो ये कांसेप्ट असर ज़रूर सोचा कि कैसे पहुँचाएँगे। तो इसको लेकर के हम लोगों ने जो चर्चा की है कि अगर हम कॉप के आधार पर लेते हैं, तो क्या हम उसका नाम पंचायत ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत कर सकते हैं, जहाँ पर हम अलग-अलग पंचायत के प्रतिनिधि हो, वहाँ पर काम करने वाले जो संस्थाएँ हैं या उस क्षेत्र में अगर मजदूर यूनियन है, उसको हम शामिल करें। उसके साथ-साथ में सरकार के जो वहाँ स्थानीय तौर पर जो प्रतिनिधित्व हैं, उनको शामिल करें। महिला प्रतिनिधि विशेष करके हम लोगों ने ध्यान दिया था कि हम महिलाओं को कैसे हम शामिल करें, जिसमें झारखंड के स्तर में देखेंगे तो यहाँ जेएसएलपीएस के बहुत से
महिला ग्रुप है उनको स्वयं सहायता समूह को कैसे हम शामिल करें। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे हितकारी थे कि हम गवर्नमेंट के भी लोगों को शामिल करें, और जो हमारा पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया और पंचायत समिति, जिला परिषद, ये हमारे जो गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके साथ में जो दुनिया के स्तर पर जलवायु परिवर्तन या जलवायु संबंधित जो बातें हो रही है, वो कैसे पहुंचेगा। हम लोगों का मानना था कि अगर परिवर्तन अगर किसी चीज का होना है या किसी नीति का परिवर्तन होगा या उसका इम्प्लीमेंट होगा, तो जब तक हम पंचायत स्तर पर नहीं ले जाएंगे, तो तब तक शायद हम कोई बहुत बड़ा बदलाव या कम्युनिटी को साथ में लेकर के नहीं जा सकते। इस आधार पर जब हम लोग कॉन्फ्रेंस 1 स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पर काफ़ी मुखिया लोग से जब हम लोग बात कर रहे थे, तो उनका भी एक लग रहा था कि भाई इसमें मुखिया को क्यों शामिल किया जा रहा है। उनका भी एक्सपीरियंस था कि कई संस्थाएँ आते हैं और हम लोग का एक मीटिंग में शामिल करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन हम लोग कॉप को बनाए कि नहीं, एक सतत प्रयास हमारा होगा कि एक दिन की ये हमारी बात नहीं होगी। हम आज बात करेंगे और ये बात मुखिया प्रतिनिधि कैसे अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे वो योजना बनाएँगे ताकि सरकार तक वो जो है बातें जाएँ। तो हमारा जो कॉप का जो बात है कि हम ज़मीनी स्तर से जो भी जलवायु परिवर्तन का जो असर हो रहा है, पहला हम लोग समझना इसमें चाहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधि क्या समझते हैं और अपने क्षेत्र में क्या-क्या उनका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो पंचायत प्रतिनिधि अपने रूप से क्या-क्या देख रहे हैं। तो ये जब हम लोग बातचीत पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया से बात करते हैं, तो सचमुच में ऊपरी स्तर पर हम लोग तो बहुत सारा चीज़ समझते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मुखिया लोग कई ऐसे जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मैक्रो जो बातें हैं, वो बताएँ हैं। और शायद हम लोग का इस रिपोर्ट में जो कॉप किए हैं उसमें शायद ये शामिल भी होगा। तो ये कॉप का एक्सपीरियंस हम लोग को कि ज़मीनी स्तर पर, गाँव स्तर पर हम उसका प्रभाव को कैसे सीख सकते हैं, क्या-क्या किस पर असर हो रहा है, तो वो पंचायत स्तर पर हम लोग को एक समझने का जो है कॉप एक अवसर दिया और हम लोगों ने इसको समझा। इसमें चूँकि हम लोग कोयला क्षेत्र के भी प्रतिनिधियों को शामिल किया, जो मज़दूर यूनियन है, कुछ इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में प्रोफ़ेसर लोगों को भी हम लोग ने शामिल किया, एकेडमिक को भी शामिल किया। उसके साथ-साथ में जो गवर्नमेंट स्तर पर जो हम लोग प्रतिनिधि शामिल किए, तो सचमुच में अभी भी एक इसमें हम लोग का एक्सपीरियंस आया कि संवेदनशीलता जो है आज भी प्रशासनिक तरह से ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम जलवायु परिवर्तन की जो योजनाएँ हैं, वो ज़मीनी स्तर पर हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एक तो बहुत समझने का अवसर मिला कि बातें हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम कॉप के माध्यम से हम ये जलवायु परिवर्तन, उसका असर और असर में जो आजीविका पर जो असर हो रहा है, ये पंचायत के माध्यम से हम लोग को समझने का एक अच्छा अवसर मिला। और शायद ये कई उदाहरण अभी हम लोग अ, बोल सकते हैं कि जब मुखिया लोग आगे का प्लानिंग क्या होगा, आगे क्या करना है, ये सब जब हम लोग से बातचीत होती है, तो ये लग रहा है कि नहीं, कॉप में हम लोग जो 3-4 सेशन में जो बातें किए हैं, वो बात को शायद आगे हम लोग उसको ले जा पाएँगे। ये ऐसा मतलब कॉप का हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है। ये मुन्ना जी थोड़ा बात रखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबदा और कुणाल जी। और मुझे लगता है कि पहले सवाल का लगभग जवाब गुलाबदा और कुणाल जी ने लगभग दे दिया है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगा कि इसके पीछे का एक और आइडिया था कि जो गुलाबदा कह रहे थे कि कैसे जो बॉटम अप सल्यूशन है, खासकर क्लाइमेट रिजिलियंस, क्लाइमेट क्राइसिस को देखते हुए वो किस तरह के होंगे। तो हम लोगों ने गांव में ये देखा कि लोगों के पास अपने इंडिजिनस नॉलेज है कि पानी को कैसे बचाना है,
हवा को कैसे बचाना है, जंगल को कैसे बचाना है, और जो उनका लाइवलीहुड स्ट्रेंथन करना है उनको, मतलब उनके जंगल से, उनके जमीन से, उनके खेत से, उनके नदी से, उनके तालाब से जो रोजगार उत्पन्न करना है वो कैसे करना है। तो वो एक नॉलेज बेस्ड भी हम लोग को इस पूरे प्रोसेस में मिला कि कैसे इंडिजिनस थॉट है जो अभी भी बचा रहा है झारखंड को। झारखंड में इतना सारा क्लाइमेट क्राइसिस होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि पिछले जो भी रिपोर्ट्स कहती है, चाहे टीएसटी का रिपोर्ट हो, चाहे आईटी का रिपोर्ट हो, चाहे इवन जो कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत क्लियर है कि झारखंड वन ऑफ द क्राइसिस स्टेट है जो क्लाइमेट डिजास्टर, क्लाइमेट क्राइसिस और अलग अलग इश्यूज का सामना करेगी। लेकिन वैसे स्थिति में एक तो सरकार जो भी अपनी योजनाएं चला रही है वो चला रही है, लेकिन जब आपके पास इंडिजिनस नॉलेज होता है तो आप बहुत कुछ प्रोटेक्ट कर पाते हैं, अपने जंगल को, अपने जमीन को, अपने नदी को, और साथ में आप अपने आजीविका को भी अच्छे से चला पाते हैं। तो वो एक चीज निकल के आया जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में ये बहुत एक्सक्लूसिव प्रोसेस रहा है। आप देखेंगे कि इससे पहले भारत में किसी ने, खासकर पंचायत स्तर पे, क्लाइमेट चेंज के का जो पूरा बहस तलब है वो चलाया नहीं। तो जब हम लोगों ने COP1 किया और COP2 किया, तो उस दौरान हमको लगता है कि करीब करीब हम लोगों ने 400, 450 पंचायत को रीच आउट किया, और झारखंड के लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। COP2 में तो बहुत बहुत बृहद स्तर पे हम लोगों ने किया है, और हम, मतलब अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग हम लोग पिछले साल और इस साल मिला के करीब 350 के आसपास पंचायतों को हम लोगों ने इंगेज किया। और उसमें जो इंगेजमेंट का जो तरीका था वो बहुत ऐसा नहीं था कि आप बुला ले रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, वो नहीं है। हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को एक डेमोक्रेटाइज तरीके से इसको लागू किया, और ज्यादातर हम लोगों ने सुनने की कोशिश की कि दरअसल पंचायत स्तर पे जो समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन के, वो क्या है, और जब जलवायु संकट आ रहा है तो पंचायत कैसे उस संकट का सामना करने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि पंचायत, खासकर गांव में, जो इधर जो ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो बहुत बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हम लोग शहरों में रहते हैं तो हम तमाम तरह की सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे पानी का बहुत संकट दिखने को मिला है। अचानक से जब मौसम बदल रहा है तो लोगों का जो खड़ी फसल है वो भी समाप्त हो जा रहा है। खासकर इवन जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें भी बहुत सारी कमियां आई हैं। तो गांव में पंचायत स्तर पे लोग ये सब जो परिवर्तन हो रहा है और ये जो संकट आ रहा है वो उसका वो उसको महसूस कर रहे हैं, उसका सामना भी कर रहे हैं, और इस पे बहुत बातचीत होती नहीं है। ग्लोबल लेवल पे बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत सेंट्रलाइज साइंटिफिक अप्रोच पे बात होता है, लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइज अप्रोच की बात करते हैं, जब रिजिलियंस और अडेप्टेशन की बात करते हैं, मिटिगेशन की बात करते हैं, तो जब लोकल लेवल पे होना चाहिए, ग्राम पंचायत स्तर पे होना चाहिए, वो बहुत कम दिखता है। हो सकता है पॉलिसी में बहुत कुछ शामिल होती है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत कुछ शामिल नहीं होता है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो हम लोगों ने इसको समेटने की कोशिश की है, सहेजने की कोशिश की है, और हमारा आइडिया है कि हम यहीं नहीं रुक रहे हैं। मतलब होता है कि आप एक बार बातचीत करके, समझ के, एक दो रिपोर्ट बना के आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस में, पिछले 2 साल के प्रोसेस में, हम लोगों ने ये महसूस किया कि पंचायत स्तर पे जलवायु परिवर्तन की बातचीत का बहुत बड़ा स्पेस है, और जब तक आप पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जलवायु परिवर्तन की बातचीत को शामिल नहीं करेंगे, और तब तक चीजें बहुत निकलेंगी नहीं। खासकर एक बड़ा समुदाय जो महिलाओं का है, वो घर में भी, मतलब डोमेस्टिकली भी वो
इस संकट का सामना कर रही हैं और बाहर भी कर रही हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा कि झारखंड में महिलाएं मतलब घर में भी काम करती हैं और बाहर भी जाके काम करती हैं। तो वैसी स्थिति में जब ये इतना बड़ा संकट है, तो कैसे, खासकर जब हम लोग के इस पूरे प्रोसेस में महिला मुखिया जो थी उनका बहुत प्रतिनिधित्व रहा। मुझको लगता है करीब करीब इस पूरे प्रोसेस में 60% महिला मुखिया लोग शामिल हुए। और जब आप पंचायत स्तर पे या जब आप लोकल स्तर पे जब आप क्लाइमेट चेंज डिबेट को आगे ले जाने की बात करते हैं या सोल्यूशन की बात करते हैं, तो जब महिला मुखिया साथी लोग जब ये चीज को समझ रही है और जब देख रही है, तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शंस आ रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा था। तो वो पूरा उन उन वो पूरा उस प्रोसेस को देख रही थी, कैसे महिलाओं को इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए, या खासकर महिलाओं को लेकर ये जो नीतियां बननी चाहिए वो कैसे बने। तो उस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आए, बहुत चीजें निकल के आई। और साथ में जो क्राइसिस है वो भी दिखा। जी। ये हमारा जो प्रयास रहा है हम लोगों का कि पहला तो जब हम लोग इसको चुनौती के रूप में हम लोग नहीं लिए हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में पर्यावरण पर बात तो होती रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जब ये पॉप का कंसेप्ट आया, क्योंकि हम लोगों को पहले काम करने का एक्सपीरियंस है, जमीनी स्तर पर लोगों से हमारी जुड़ाव रहा है। तो ये जब जलवायु परिवर्तन की बातों को लेकर के पंचायत में बात करने की अवसर आए, तो हम लोग की जो परिचय था पर्यावरण का, चूंकि हम लोग मेरा तो कम से कम पर्यावरण के क्षेत्र में 10-12 जिलों में अच्छी एक काम रहा है। तो ये जब हमने बात किया कि जलवायु परिवर्तन की असर, और एक शब्द हम लोग थोड़ा सा जोड़ रहे थे जस्ट ट्रांजिशन, तो थोड़ा सा नयापन लग रहा था। लेकिन जब हम लोग कहते हैं पर्यावरण पर बात हम लोग करेंगे, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण पर बात हम लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका असर हमारे जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है, इसलिए इस पर बात करना है। तो वो अच्छे मुखिया लोग से बात करते हैं या महिला समूह से बात करते हैं या सरकार से बात करते हैं, तो बातों की जब हम लोग कहते हैं तो वो ज्यादा चुनौती तो नहीं रही कि इसमें कैसे उन लोगों को शामिल हम लोग करेंगे। तो बातचीत एक हमारा जो सतत बातचीत है वो हम लोग ने मुखिया से, और हमने पहले कॉप करने से पहले शामिल करके स्टेक होल्डर को शामिल करके हम लोगों ने शुरुआत किया। उसके बाद कॉप के बारे में हम लोगों ने बताया कि इस तरह से हमको आगे पंचायत के अलग अलग प्रखंड के लोगों के साथ, अलग अलग प्रखंड के पंचायत के मुखिया के साथ में हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्रमंडल स्तर पर बातें करनी हुई। तो वहां पर अच्छा कॉपरेशन मिला मुखिया लोगों का। तो ये जब हम जमीनी स्तर पर छोटा छोटा मीटिंग करके जब हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर हम कमिश्नरी लेवल पर जब बात किए, तो ये एक हमको सहजता मिली। तो ये चुनौती बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन कुछ तो चुनौतियां जो ग्राउंड लेवल पर कुछ संस्थाएं जो काम कर रही है, तो संस्था भी शामिल होने के प्रयास करती हैं। तो उनका काम करने का जो तरीका है और हम लोग के काम करने के तरीके में इसमें थोड़ा अंतर आया। वो एक इवेंट के रूप में देखते हैं कि एक प्रोग्राम करना है, लेकिन हम लोग चूंकि आने वाले भविष्य की चिंता हम लोग कर रहे हैं, तो उसलिए उस तरह के कार्यक्रमों को साथ में हम लोग अंडरस्टूड करके हम लोग बात किए। तो ये चुनौती थी, लेकिन उसको हम लोग अवसर के रूप में कैसे हम आगे ले जाएं, ये हम लोगों ने उसको देखा है। Gulabda has already mentioned, but I mean, I would like to highlight one thing that was crucial in navigating the challenges, that the three organizations who partnered on this for organizing the COP. So
the three different organizations brought different things to the table. We were not competing with each other in the work that we were doing. We were rather complementing each other. So, say, Gulab Das organization, Damodar Bachao Abhiyan, was responsible for the local level mobilization. We were somewhere responsible for curating the sessions and overall knowledge management. Asar provided the overall guidance to the entire thing. So that helped a lot in navigating whatever little challenge. I mean, with anything, you are bound to encounter certain challenges, but how you navigate them effectively and by complementing each other, that is crucial. And I believe this partnership has been beautiful in that sense that we've complemented each other a lot in whatever work we have done. There has been no duplicacy in terms of the work that we are trying to do. So the roles and responsibilities were clearly defined. The roles were delegated to each partner organization, and which resulted in effective implementation of the two editions of the COP, in my opinion. And to answer the second part of it, that if we are thinking of scaling it up and taking it to, say, other states or other partner organizations, implementing it in other states. So one crucial thing that we need to keep in mind is that each region or each state presents its own unique challenges and opportunities. So customizing the COP model to fit the local context, in my opinion, is the most crucial aspect. So rather than duplicating efforts, what has been done in Jharkhand or say happens in some other state tomorrow should not be duplicated. Rather, first, I mean, at the first level, certain research should be undertaken. I mean, I'm not saying that a whole scale evidence generation exercise, but rather some secondary research to just understand the context, just understand the realities, the problems, the challenges that region has. And then based on that, uh, build the entire idea of COP for that particular region. And also working closely with local leaders, stakeholders, CSOs, government organization is also important to amplify the impact of COP, because until unless you are engaging with these different stakeholders, the impact is not likely to be as much as it could be. That is another thing that I would say. And along with that, documentation of the sessions, just documenting the learnings, whatever through, I mean, the learnings that come through these sessions is also important. So these three things, I believe, are really important if we are thinking of scaling it up across different spaces. Yeah. आपके पीछे जो हम नेविगेट करते हैं, जो गुलाबदा कह रहे थे कि कॉप के पहले हम लोगों की बहुत इंटेंसिव तैयारी थी। मतलब खासकर कॉप से पहले हम लोगों ने कई सारे मीटिंग्स किए हैं। मतलब ऐसे सिर्फ कॉप मतलब खासकर मैं पार्ट 2 जो 2.0 है उसकी बात मैं कर सकता हूँ कि उसके पहले कम से कम हम लोगों ने खासकर गुलाबदा ने के जरिए हम लोगों ने करीब करीब 2 दर्जन मीटिंग्स किए हैं अलग अलग जगहों पे। ईडैग और दामोदर बचाओ अभियान, इवन 101 मीटिंग्स भी बहुत सारे मुखिया के साथ हुई है। तो एक तो ये था कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो एजेंडा था या जो आइडिया था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दिया था। तो वो बहुत इजी होता है जब आप ब्लैंक नहीं जाते। मतलब कोई मुखिया ब्लैंक नहीं आया है उस पूरे प्रोसेस में। तो मुखिया एक आइडिया के साथ आया था। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कुणाल जी ने बताया कि आप जब मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में क्या चीज लेके जाते हैं। तो आप देखेंगे कि बीडैग ने इस पूरे प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट था, खासकर जो प्री रिसर्च होता है, बेसिकली स्टेट का जो पॉलिसी है वो कैसे हेल्प कर रहा है, स्टेट इवन जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, खासकर जिसमें जो क्लाइमेट रिजिलियंस अडेप्टेशन और मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत को लेके, वो किस तरह के स्कीम्स है, वो कैसे हेल्प करेगा पंचायत को। तो वो एक मैप आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप जब मुखिया के साथ बात करेंगे तो आप ब्लैंक बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है और बहुत सारे स्कीम्स पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उनको नंबर्स भी चाहिए और उनको आइडिया भी चाहिए कि किस तरह की स्कीम्स हैं जो उनको हेल्प कर सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पंचायत स्तर पे उनको वो सारे स्कीम इम्प्लीमेंट करने हैं। तो उसमें एक लर्निंग भी आया कि बहुत सारी स्कीम्स जो है वो मुखिया जी लोग को के या तो पता नहीं है या तो फिर उनके
उनके दायरे में नहीं आता। वो बहुत सारे स्कीम्स, वो इंटरेस्टिंग था वो, क्योंकि जब हम ग्रामीण स्तर पे या पंचायत स्तर पे क्लाइमेट रिजिलियंस या क्राइसिस से क्लाइमेट रिजिलियंस एडाप्टेशन पे बात कर रहे हैं, तो वो सारी स्कीम्स जो है वो उस पे उनका हैंड होल्डिंग है ही नहीं। तो एक तो ये कि रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई भी चीज को नेविगेट करते हो, और पीडैक ने उस पूरे प्रोसेस में बहुत इंटरेस्टिंगली उसको मतलब बहुत साइंटिफिकली उस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इवन चाहे वो ब्रीफिंग नोट हो, चाहे वो रिसर्च डॉक्यूमेंट हो, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और फिर आप उसको लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, खासकर आप आप अंग्रेजी के साथ नहीं जा सकते, तो आपको हिंदी में भी आपको उसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। हिंदी में भी वहाँ के जो वहाँ का लोकल हिंदी चलता है, तो हमारी कोशिश थी कि खासकर जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ का जो कुछ फ्लेवर है उसको भी हम लोग डालें। इवन हमारे मीटिंग के दौरान भी हम लोगों ने कोशिश की कि उसको जितना सहज रखा जाए, तब हम इस पूरे प्रोसेस को नेविगेट कर पाए। uh, there is a lack of understanding with regards to awareness, not lack of understanding, not lack of awareness around government schemes uh, among certain members of the PRIs. So that how do we build that awareness is very important. So that is one challenge that we, or rather learning that we realize, that not all PRI members have same level of awareness with respect to different government schemes or funding, government funding that is available. Secondly, in terms of learnings, also we realize that uh, the COPs have played a critical role in bringing women to the forefront of climate conversations. And we have seen very active participation from female representatives. And Munnaji already also mentioned that about 60%, 65% of these participants are women. But I feel that there's still much more that we can do in terms of giving a platform to women participants, and also empower them through some capacity building workshops to take up initiatives at the local level. That is very important, because developing women leadership at the local level is extremely crucial in our opinion. I mean, when I say our opinion, I'll be mentioning it on behalf of both ASAR as well as Damodar Bachao Abhiyan. That is something that we should be taking up going further. Also, we realize that at least in the Jharkhand context, that climate-induced migration has emerged in a big way in Jharkhand. And something that we had not even thought about when we were organizing these COPs, that that is a phenomena that is taking place. But through these COPs, it became quite evident that this is a phenomenon that is widespread across Jharkhand and is not limited to any particular division within Jharkhand. So I'll say that these are broadly some of the learnings that I mean, I can recall at the top of my head at the moment. यूपी से तो दो चार चीजें हम लोग को जो सीखने का अवसर मिला कि एक तो हम जब कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ में और गवर्नमेंट के कुछ प्रतिनिधि के साथ में, प्लस में कुछ सीओसी के साथ में अगर कुछ चीजें को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो एक प्रिपरेशन विषय को लेकर के जो होना चाहिए कि कैसे हम इन तीनों को सामंजस्य कर सकते हैं। तो एक तो एक्सपीरियंस की जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो अभी उनका जो एक आदत है कि सरकार के साथ में काम करने की आदत है, और जो दुनिया में या देश में कुछ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो चिंतन जनप्रतिनिधि लोग नहीं करते हैं। क्यों? वो केवल जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको एक इम्प्लीमेंट जैसा योजनाओं को लेकर के उनकी सोच रहती है। लेकिन जब हम लोग एक नए चुनौती को और एक अवसर को दे कॉप या जलवायु परिवर्तन की बातों को लेकर के, तो ये हमारा सीख है कि उसके लेकर के जब हम लोग वहाँ बात करते हैं, तो उनके साथ जो सामंजस्य कैसे करना है, ये एक सीख मिली। क्योंकि मैं दो चीज ऐड करूंगा। एक ये कि
देश के स्तर पे नहीं, कम से कम राज्य के स्तर पे, झारखंड के स्तर पे इस पूरे प्रोसेस में काइंड ऑफ वाइट पेपर मैं बोल सकता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक एक नॉलेज बुक हम लोगों ने तैयार किया है कि जब आप पंचायत स्तर पे क्लाइमेट चेंज का डिबेट करेंगे या पंचायत स्तर पे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज पे आप बात करेंगे, तो बेसिकली क्या कंसर्न है जो अ, जिसको हमको आने वाले समय में शामिल करना चाहिए। तो कम से कम स्टेट लेवल पे आने वाले समय में जो भी पॉलिसी बनेगी पंचायत स्तर पे, खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी नीतियां बनेगी, उसके लिए ये एक डॉक्यूमेंट भी होगा कि झारखंड में एक्चुअली में पंचायत क्लाइमेट चेंज को कैसे देख रहा है। और ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट है इसलिए भी कि हमने हमारे पास नंबर बहुत बड़ा है, 350 400, लगभग 425 के आसपास मुखिया जी लोग थे जिनको हमने इंगेज किया, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और भारत में पहली बार किसी ने इतने बड़े स्तर पे पंचायत को या इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को रीच आउट किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, एक वाइट पेपर है जो बता रहा है कि कैसे आप पंचायत स्तर पे क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट अडेप्टेशन मिटिगेशन या नॉलेज, क्लाइमेट बेस्ड नॉलेज को कैसे आप देख रहे हैं या देखते हैं। जो कुणाल ने एक बात कहा कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन बेसिकली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है झारखंड में जो निकल के आया है। शायद COP1 में हम लोग उस चीज को बहुत महसूस कर रहे थे पर बाहर नहीं था वो, लेकिन COP2 में 2.0 में वो बहुत क्लियरली बाहर आया। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई स्टेट जहां पर जहां अमूमन झारखंड को लेके ये अवधारणा है कि झारखंड एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन दूसरा अवधारणा ये भी है कि झारखंड जंगल और जमीन और आदिवासियों का स्टेट है। तो दो दो अवधारणा, एक जो कहता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, और उस इंडस्ट्रियल स्टेट में आज भी अगर आप पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हो या पर कैपिटा इनकम हो, वो सबसे कम है वहाँ के लोगों का, नंबर एक। नंबर दो, जब हम फॉरेस्ट स्टेट की बात करते हैं और आदिवासी स्टेट की बात करते हैं, तो आज भी पॉवर्टी जो है वो बहुत ह्यूज है। और वैसी स्थिति में जब क्लाइमेट इम्पैक्ट होगा, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, तो वो गांव के गांव खाली कर दे रहा है, वो बहुत क्लियर आया है। तो ये इतना बड़ा अगर क्लाइमेट क्राइसिस है, तो जो हम लोग बात करते हैं कि क्लाइमेट फिनांस और तमाम तरह की बात करते हैं, तो क्या एक चीज और निकल के आया कि क्या झारखंड जैसे स्टेट, जहां जो ऑलरेडी भारत सरकार को बहुत पैसा देती है माइनिंग से, इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा इकोनॉमी है, दूसरे तरफ फॉरेस्ट कवर्ड बहुत बड़ा है, एक तरीके से भारत का एक ऑक्सीजन बैंक भी है झारखंड। और हम लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा कि झारखंड से कई जगह ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, वो साइंटिफिक ऑक्सीजन था, लेकिन नेचुरल ऑक्सीजन बैंक भी है झारखंड। तो आप ऐसे देखिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और झारखंड से सबसे ज्यादा अमीर लोग भी बने हैं। और एक विरोधाभास ये है कि ये क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से झारखंड के गरीब लोग जो हैं, आदिवासी लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, वो इस मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनका पानी खत्म हो रहा है, क्योंकि उनका खेती खत्म हो रहा है, क्योंकि उनका जंगल में जो महुआ, चीड़, चिरौन, तमाम तरह का जो मशरूम हुआ करता था, रुगड़ा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि गरीब लोग और गरीब हो जा रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, और पंचायत स्तर पे ये क्राइसिस बहुत खास करके निकल के आया और उसकी वजह से माइग्रेशन भी हुआ। तो मोटा मोटी आप जब क्लाइमेट, हम लोग जो लेस कंजम्पशन कर रहे हैं, लेस, और हम रिसीविंग एंड पे है, हमारे हमको पैसे की भी जरूरत है, झारखंड जैसे स्टेट को पैसे की भी जरूरत है कि इस पूरे
क्लाइमेट क्राइसिस से बाहर आए। तो ये सारे आउटकम्स भी बाहर आए हैं, मतलब कि गरीब और गरीब होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और उनके पास कोई फिनांस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि पंचायत स्तर पे कोई एक सिस्टम डेवलप हो जिसमें माइग्रेशन जो है वो रुके, क्लाइमेट रिजिलियंस, एडाप्टेशन और मिटिगेशन का एक एक प्रॉपर अप्रोच खासकर पंचायत स्तर पे बने, जो इस माइग्रेशन को रोके। माइग्रेशन बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज झारखंड में, जो मुझे लगता है कि ये पूरे COP1 COP2 का एक बहुत बड़ा आउटकम के तौर पे हम लोग देख रहे हैं और लर्निंग के तौर पे भी देख रहे हैं। सुदीप। कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत इटसेल्फ हम साइलो में नहीं देख रहे, मतलब इवन जस्ट ट्रांजिशन भी हम लोग साइलो में नहीं देख रहे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत में हम पंचायत स्तर पे जितने तरह के जलवायु संकट है उस पे हम लोगों ने चर्चा की है, और जितने तरह के सरकारी सॉल्यूशंस हैं जो जलवायु संकट से का सामना कर सकती है उस पे भी हम लोगों ने बातचीत किया है, और ग्लोबली और लोकली चीजों को देखने की कोशिश की है। पंचायत की झारखंड, जब दुनिया जस्ट ट्रांजिशन पे बात कर रही है और भारत में झारखंड शायद भारत झारखंड को सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड में खासकर जस्ट ट्रांजिशन को लेके बहुत सारा मूवमेंट ऑलरेडी 3 साल पहले से शुरू हुआ है। झारखंड टास्क फोर्स भी, जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स भी बना है, और कई तरह के सोल्यूशंस पेपर भी आए हैं, और वो सारे महत्वपूर्ण है, मतलब आप किसी को नकार नहीं सकते हैं, सारे अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। जो तमाम तरह के रिसर्च आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, लेकिन जब आप पंचायत स्तर पे जस्ट ट्रांजिशन या ये पूरा जो एनर्जी ट्रांजिशन है उस पीस को देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कॉप, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, चाहे वो जो कोयला खनन हो रहा है वो शहर के अंदर नहीं, या या भी जो जिस तरह के भी खनन हो रहे हैं वो शहर के अंदर नहीं हो रहा है, वो मोस्टली कुछ इलाकों को छोड़ दे, धनबाद का एक इलाका है जिसको छोड़ दे, और कुछ एक इलाके को छोड़ दे, गुलाबदा भी ऐड करेंगे तो वो कुछ शहर का एरिया, वरना ज्यादातर जो माइनिंग प्रोसेस है झारखंड में वो मान के चलिए कि वो या तो ब्लॉक लेवल पे है या पंचायत, उन पंचायत के आसपास के रेडियस में, और वहां पर जो ज्यादातर मजदूर हैं या जो कोयला खनन में से जुड़े हुए जो एडजर्निंग व्यवसाय है, बिजनेस है, वो सारे ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे चल रहे हैं, मतलब उस एरियाज में आता है, उस रेडिएशन में आता है। तो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पंचायत को स्ट्रेंथन करते हैं, तो जब क्लाइमेट चेंज को लेकर जब उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो साथ में उनकी ये भी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि जस्ट ट्रांजिशन भी एक प्रोसेस है। उनके एरिया में आज न कल कोयला भी खत्म होगा, जो बात भी हो रही थी कि कोयला खत्म होगा तो हमारे यहाँ किस तरह का इकोनॉमी डेवलप होगा, और वो उसमें कैसे पंचायत कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे अपने लोगों को, जब नए रोजगार की बात होगी, न्यू इकोनॉमी सिस्टम की बात होगी, तो कैसे पंचायत उस प्रोसेस में शामिल हो सकता है, या पंचायत कैसे जो केंद्र सरकार की योजना है या जो राज्य सरकार की योजना है, चाहे मनरेगा हो, चाहे जल जीवन अभियान हो, चाहे कैंपा हो, ये सारे स्कीम्स को लेके कैसे पंचायत ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है उसमें उसमें कैसे अपने एरिया में एटलीस्ट लोगों को रोजगार दिला सकता है, मतलब बहुत रोजगार तो नहीं, लेकिन कोशिश ये हो सकती है कि मतलब एक बड़ा जो गैप है उसको कैसे भरा जा सकता है। तो इन सब इश्यूज पे बात हुई है, और मुझे लगता है कि इवन जेटी के प्रोसेस में भी जब हम ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत कर रहे हैं तो जेटी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया था, और मुझे लगता है कि जेटी के इशू पे बहुत एक्सक्लूसिवली मैं बोल सकता हूँ कि भारत में ही क्या पूरे दुनिया में पंचायत स्तर पे जेटी पे कोई बातचीत नहीं हुई है, जो हम लोगों ने जस्ट ट्रांजिशन, जो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत के दौरान बात की है। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पंचायत भी इस पूरे प्रोसेस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत के साथ इस प्रोसेस में तैयार हो रहा है कि कैसे जब जेटी का ये
जब आने वाले समय में जो इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी की बात हो रही है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो कई सारे सोल्यूशंस, सजेशंस भी आए मुखिया जी लोग की तरफ से कि जब ये हमारा कोयला खत्म होगा या तो हम लोग कैसे अपना जो रोजगार है उसको बचा पाएंगे, या जब न्यू इकोनॉमी आएगा तो कैसे हम लोग पंचायत का स्किल को डेवलप करेंगे, ताकि मान लीजिए अगर किसी इलाके में 200 मेगावाट का सोलर प्लांट आएगा तो हमारे पंचायत के लोग के पास वो स्किल हो ताकि वो उसमें खप जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंगली ये सारी चीजें भी हुई है। In the context of just transition, panchayats become extremely crucial. I'll lay out an example. The context and realities of, I'll talk about two different mining projects. So one is based in Chatra and the other is in Giridih, Kabribad. So the realities across these two mining regions is completely different. So if any sort of just transition policy is going to come, say in a few years down the line, you cannot have an approach that is top heavy without even realizing the importance, the realities, the local context of these mines, because the realities across these two mining regions is completely different. And I can vouch for the fact that across different mining regions within Jharkhand itself, the realities would be very different, because these mines have been running across running across different years. They started operations across different years, and some of them have already reached their capacity. Some are yet to reach their peak production. So the reality is the challenges that local communities are facing at the local level, they only understand. And until unless they are given a platform, their issues, their challenges are not brought to the fore, whatever JT policy comes up tomorrow would do a great injustice and would not at all be just in any sense to these local communities. So involving these local communities is extremely important without giving them a say in terms of the type of livelihood activity and they would like to take up, without mapping their skill levels, without understanding other realities in terms of whatever social protection schemes that need to be brought in for them. We are not looking at a just transition policy. At least this is my observation based on different work it's a different piece of work that we have undertaken in Jharkhand itself. But so the findings that have come out from that study, and based on my field observations, that is what I'd like to add, that in terms of just transition, hence panchayats become extremely crucial, because without giving these panchayats a say, that local communities a say, any sort of just transition is not going to be just at all. Despite whatever reports, there are different reports, different findings, but they are in some sense, very top heavy and take a very top macro view rather than going into the details and nuances of the needs and realities of the local communities. So just to, they should take into account the local context. That is extremely important. So because every state would present its own unique challenges and opportunities, so that understanding the local context is of primary importance. Documenting the learnings being the other. And along with that, develop as much a group of as diverse stakeholders as possible. So engaging with local communities, engaging with the government officials at the district or the state level, not at the state level, but district level mostly. So block level, district level, engaging with government officials, engaging with the local CSOs that are working in the region, and also identifying the government programs and policies related to climate action and rural development at the local level, so that these can also be disseminated to the communities who are part of these COPs in wherever they are organized. So broadly these. Nothing, just one thing I would like to add कि जब आप और हम जब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो एक तो ओपन होके जाए, मीडिया लेके जाते हैं और थोप देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जो क्रिटिकल लोग हैं उनके लिए हमको ओपन होना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्राइसिस में, तो वो ओपन होके जाए
तो इससे बहुत फायदा